Are you guys able to see my screen? Yes. Yes, Yes, sir. sir, we can. We will quickly recap whatever we have learned it in last session. So we have learned about what is cybersecurity. Any questions? Any confusion about cybersecurity? What is cybersecurity? किसी को कोई problem है? I hope all of you understood the definition of cybersecurity. इसका क्या objective है, क्या purpose है, and the importance of cybersecurity in current era. Then we had कौन-कौन से domains है cybersecurity में, that we all understood, and it's very clear, and it's up to you and it up to your interest कि आपको कौन सा इसमें से सबसे अच्छा लगता है और किसमें आप अपना अच्छा अपने आप को स्किल्ड कर सकते हो. अगर if you skill yourself in all these domains, then that is wonderful. We have learned about what is ethical hacking, who are the ethical hackers, or who are the malicious hackers, and we also take a oath that we will never do any kind of unethical activities. We also learned about what kind of hackers are, what types of hackers are: white hat, black hat, gray hat, and activist. So we didn't learn. We have not gone through this slide. Balaji, when we will start the ethical hacking penetration testing class, then we will go through it. We have learned about information, what is why, who, when, all these why, W and H in information security and why it is required. Then we learned about what kind of information is supposed to be secured, supposed to be protected, and where you will find the informations are there, how you will categorize that something should be protected, whether it is on any kind of hardware or any media, whether it is on paper or किसी ने बोला, if that is also very important. For example, अगर आप किसी कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बात कर रहे हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और वो आप किसी रेलवे स्टेशन पे या किसी चाय के शॉप में बात करते हैं, तो कोई भी उसको सुन सकता है. तो इट्स नॉट जस्ट द रिटन or any digital media, it's also what you talk in front of and in front of whom you are talking. So be mindful that you first know that you know about the information, and then you will able to protect that information for organization or government and wherever you will be working. And of course, you also have your personal information, that is called personal identifiable information. Personal identifiable information, if you share your personal identifiable information like date of birth, your driving license number, your medical card number, something like that, it can be misused. So we have to make sure that we should not be sharing any personal information, sensitive personal information online without knowing where you are sharing. It's not randomly. If you find some form and it is asking about your date of birth, bank details, don't fill it. Just ignore it. No bank, no government agencies ask your personal information over the email. Either they will call you or they will send you some letter. And it is not just in UK, it is all over the world. And India is also doing the same thing. So that is a process. So don't share any personal information online. Of course, with excitement, we share our personal photos, videos on social media. Try to avoid it. If you are so much tempted to post it on social media, try to share it with your limited group. Don't publish it. Don't share it for the public. तो ये सारी चीजें हैं. आप लोगों को समझ में आई? Are we good on to with our last session? और मैंने आलोक सर वो उसके बारे में बता रहा था कि जो हमने बेसिक्स क्वेश्चंस के जो लिस्ट दिए थे वो Right. सारा जो है कवर हो गया है. उसमें भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन bring up those questions. यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं क्विकली हम लोग. Absolutely. Because we are going to cover a little bit of few of the questions from that list, and that is very important in your cyber security journey. अगर आप लोगों को वही नहीं पता होगा तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं. So make sure that what are the questions which we had shared, Ranjan had shared, you must learn about it. Okay, Ranjan, actually we will go through those questions right quickly, or maybe when we will start our networking session or penetration testing session, then you can start. Good. ठीक है, तो आज हम लोग अपना डे 3 का शुरू करते हैं. अपना कोई क्वेश्चन तो नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी आंसर कर दिया. So let's move on to day 3. And now day 3 would be very important because we will now going into the technical
क्लासेस। अभी तक तो थ्योरी हम लोग समझ रहे थे, वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, व्हाट एक्चुअली द पर्पस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्चुअल इंटरनेट. वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल थिंग्स वेयर वी आर कनेक्टेड. उसमें आपके क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द इंटरनेट. कोई बता सकता है कि व्हाट इज द इंटरनेट? एनीवन? It is an interconnection of different LANs, WANs, or different networks. वेरी गुड. और तो इसका एक या अनुपम Yes. प्लीज. Sir, maybe we can define it as a global network provider which connects all the devices across the world with each other. Very good. Yes, exactly. So as a definition, if you read it over here, the internet, A, is the global system of interconnected computers networks that uses the IP protocol. Right? वो बोलते हैं TCP IP, Transmission Communication Protocol and Internet Protocol. That is the one part where all the networks are connected, all the devices are connected. And the second part is communication between the network and devices. One thing is connection and how the communication is happening. So basically it's a connection of many computers, many devices, many LANs, many WANs, or many metropolitan areas of network. Right? कैसे होता है? जैसे हम लोगों ने पहले बात किया था कि सी के थ्रू वायर जाता है, घर से हम लोगों का जो वाईफाई का कनेक्शन है, दोज ऑल आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स, in fiber optics, different kind of cable. Then it goes to some local internet provider, and then it goes to C, and then it goes to the actual server where something is hosted. So that is called internet. कैसे होता है? कैसे बना होता है? The whole internet is made of different kind of hardware. हार्डवेयर में हमने सबसे पहले बात की कि केबल होता है, केबल्स जिसके थ्रू आप एक्चुअली में कनेक्टेड होते हो और वाईफाई से कनेक्टेड होते हो. देन अदर थिंग इज सर्वर्स. सर्वर होता है कि जहां पे मल्टीपल यूजर्स कैन लॉग ऑन टू वन सिस्टम. आपके लैपटॉप पे सब लोग कनेक्ट नहीं कर सकते, बट देयर आर द सर्वर्स एंड क्लाइंट काइंड ऑफ कंसेप्ट इन आईटी वर्ल्ड. Then the routers. Routers are the devices which connect one network to the another network, internally or externally. जैसे एक सिटी के ऑफिस को अगर कनेक्ट करना है दूसरे सिटी के ऑफिस से, देन राउटर प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन दैट कनेक्शन. Then the cables हमने देख लिया. Then the satellite. So all these things where which is interconnected, that is called internet. Now how it works? Just take an example. Local area network. What is a local area network? Local area network is a group of a small few numbers of computers. ठीक है, जैसे कि एक ऑफिस का हो गया जहाँ पे 100, 50, 200 कंप्यूटर कनेक्टेड है. It can be 5 or it can be hundreds of computers connected in one office. उससे बोलते हैं local area network. Now that local area network is connected to that office, डिफरेंट ऑफिस. उस कंपनी के डिफरेंट ऑफिस से कनेक्टेड है, या तो उसी सिटी में या फिर उस सिटी के बाहर कहीं पर. दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. राइट? और वो सारे के केबल से जुड़ रहे हैं. देन द वैन. वैन क्या है? जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि मान लो कि कुछ सर्वर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये कुछ ये ऑफिस है, दूसरा ऑफिस इनका है. सो ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क. राइट? और इसका क्या यूज होता है? अलाउ डिफरेंट सर्विसेज लाइक ईमेल, फाइल ट्रांसफर्स, वीडियोस, कॉल्स एंड वेब. तो एज ए नटसेल कि जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं पूरे वर्ल्ड में, वो कनेक्टेड है वायर के थ्रू, डिफरेंट हार्डवेयर के थ्रू, और उस कनेक्टिविटी को बोलते हैं इंटरनेट. राइट? एनी क्वेश्चंस गाइस? रंजन, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ इट? नहीं सर, सर मैन एंड वैन के बीच में थोड़ा डिफरेंस नहीं समझ आया. मैन एंड वैन. हाउ टू रिमूव इट? तो मैन एंड वैन का जो सिंपल सा कंसेप्ट है कि मैन हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. लेट्स से कि एक ऑफिस मेरा, जैसे मैं कंपनी में काम करता हूँ तो उसका एक ऑफिस हो गया नोएडा में, दूसरा ऑफिस हो गया लेट्स से गुड़गांव में हो गया, तीसरा ऑफिस हो गया आपका लेट्स से बैंगलोर में हो गया. तो इट्स अ बिटवीन लैन एंड वैन का जो कंसेप्ट है उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. राइट? इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन मैन एंड वैन. Make Okay, sense? sir. Thank you. Okay.
एनी क्वेश्चंस गाइस? आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है बताओ, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। तभी बेसिक से तभी सीखोगे जब आपको माइंड पूरा क्लियर होगा कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हो और किस चीज पे काम कर रहे हो। सो whenever you see your computer, just feel it like that. Think about it, whether I am connected with the LAN, whether I am connected with the MAN, or I am connected with the WAN. If you are connected locally, you are not going outside to your computer, just 3 4 5 10 computer connected है, then it will be a LAN. If you are connecting from one office to another office, then it can be a MAN. और अगर आप इंटरनेट पे चले जाते हो, दूसरे ऑफिस के सर्वर्स को एक्सेस करते हो, तो वो पूरा, या फिर किसी और वेबसाइट पे जाते हो, या फिर और किसी सर्वर्स वर्ल्ड के किसी भी कोने पे कहीं रखा हुआ कुछ, उसको एक्सेस करते हो, तो वो हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, नाउ द अनदर कंसेप्ट इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द वर्ल्ड वाइड वेब, www। आपने इसका बहुत हमेशा सुना होगा, हमेशा देखते होगे कि जब भी आप टाइप करते हो वेबसाइट पे तो www आ जाता है। www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। एनीबडी कैन आंसर इट? कैन Sir, it is एनीबडी? it is an information system hosted on the internet where like every web page is connected to another with the help of hyperlinks. So वेरी गुड, एब्सोल्युटली। तो बेसिकली जैसा कि आपका इंटरनेट है, दैट इज कनेक्शंस ऑफ lots of hardwares, different kind of hardwares, and that is connecting through different routes, Wi-Fi wire के through। उसी तरह से www is interlinked system of interlinked documents and resources, जो कि इंटरनेट का यूज करता है कनेक्शन के लिए। जैसे कि आपने एक वेब ब्राउजर पे आपने कुछ टाइप किया, तो वो भेजता है जहाँ पे वो होस्टेड है सर्वर, वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर पे अगर वो पेज मिल जाता है तो वो रिटर्न कर देता है जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजा है। और ये www बनता कैसे? तो आपके लिए एक HTML पेज होना चाहिए, CSS होना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट होना चाहिए। तो ये दीज आर द थिंग्स विच इज बीइंग यूज्ड। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब जो है, सो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेज है। देखते हो कि अगर आपका एक साइट है जिसमें कि आपने education.com किया तो एक पेज खुल के आ गया, लेकिन फिर आपने दूसरे पे क्लिक किया तो दूसरे पेज पे चला गया। तो दैट इज अगेन दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। फिर उसके बाद हाइपर लिंक्स, कनेक्टेड टू कनेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखते होगे कि एक वेबसाइट पे आपने जैसे ही किया तो उसके बाद दूसरे उस पे लिंक है, यू कैन क्लिक इट एंड देन इट विल कनेक्ट। सो बेसिकली इट विल ब्रिंग यू द सम इन्फॉर्मेशन ऑन टू सम काइंड ऑफ टेंजिबल थिंग लाइक ब्राउजर। कोई एक मीडियम होता है जिसपे आप टाइप करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेके आता है, वो दिखाता है आपको। इसको यूज करने के लिए हमारे पास वेब ब्राउजर है, क्रोम है, सफारी है, ये सारी चीजें हैं। और डिवाइसेज हैं, मोबाइल डिवाइस पे भी आप आजकल देख ले रहे हो, कंप्यूटर पे देख ले रहे हो। और ये यूज क्या करता है? ये HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करता है। किसी भी कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट पे प्रोटोकॉल का यूज होता है, एंड HTTP एंड HTTPS आर वन ऑफ देम। वी विल लर्न अबाउट दिस इन फर्दर क्लासेस। अब आप हम लोग समझते हैं कि आखिर जब हम हमारे पास एक URL होता है तो होता क्या है। URL जब हमने ब्राउजर पे डाला तो उसके बाद क्या होता है, URL में है क्या बेसिकली, इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे इतने लंबे URLs हैं, तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स। सो बेसिकली आपको वर्ल्ड वाइड वेब को रन करने के लिए आपको एक URL चाहिए, एक प्रोटोकॉल चाहिए, HTML बेस्ड आपका पेज चाहिए, और फॉर यूजिंग इट, फॉर एक्सेसिंग इट, यू नीड द वेब ब्राउजर। अब ये सारी चीजें होती क्या है? तो ये आपका कंप्लीट जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आई थिंक URL, राइट? हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो बेसिक ये जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक HTTP से लेके HTML तक है, इसको बोलते हैं URL। रिमेंबर इट। नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो HTTP क्या है? ये आपका एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इसी पे आपका जो भी कंटेंट जो जाता है वो आपका ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है ये HTTP। देन आपका आता है सॉरी रंजन, हाँ, मैं ये बोल रहा था कि बहुतों को पता नहीं होगा प्रोटोकॉल क्या है। तो इन नटशल मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोटोकॉल मतलब एक सेट ऑफ रूल है जिसको फॉलो करके कोई काम करना होता है। तो प्रोटोकॉल कोई बहुत फैंसी वर्ड नहीं है। मान लो कि मेरे को जो है किसी से बात करना है, तो एक रूल बना हुआ है आपस में कि नहीं, मेरे को फ़ोन से बात करना है, लेट्स से व्हाट्सएप कॉल से बात करना है। वैसे ही ये एक लेमन टर्म एग्जाम्पल था। वैसा डिजिटल टर्म में एक तरीका बना हुआ है कि कैसे किसी मैसेज को आप भेज सकते हो, या फिर एक नियम बना हुआ है। सो दैट नियम इन इंग्लिश कॉल्ड, उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो HTTP इज अ प्रोटोकॉल। बेसिकली
इंटरनेट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, कि अगर HTTP ही जाएगा तब उसको समझ में आएगा। राइट इज दैट राइट? तो जैसे हम लोग बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो इंग्लिश अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो हमारी बात नहीं समझेगा, हिंदी नहीं समझ में आएगा तो उसको नहीं समझ में आएगी बात, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सो सर एक क्वेश्चन है कि यस, HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंट है? वेरी गुड क्वेश्चन। रंजन, वुड यू लाइक टू आंसर इट और शुड आई हाँ आंसर? नहीं मतलब इसको हम लोग डीपली और भी कवर करेंगे बाद में, लेकिन छोटा सा मतलब एक बेसिक एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे एस लगा है ना, एस का मतलब होता है सिक्योर। तो ये जो प्रोटोकॉल है, जैसे सर ने बोला कि HTTP एक तरीका है कि एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कैसे जो है कोई डेटा भेजेंगे। तो चलो ठीक है, HTTP के थ्रू हम लोग एक्सेस कर रहे हैं उसको, लेकिन उसको सिक्योरली कैसे एक्सेस करें, उसका एक प्रोटोकॉल है HTTPS। तो इसी पे एस लग जाता है, एस मतलब सिक्योर। अब वो कैसे इस मतलब सिक्योर होगा वो हम लोग डिटेल देखेंगे बाद में, अभी URI पे फोकस करते हैं, URL पे। एब्सोल्युटली। सो HTTP आपका, जब भी कोई HTTP टाइप करके या फिर कोई साइट अगर HTTP पे होस्टेड है, तो इसका मतलब है कि ये जो भी डेटा भेजेगा वो अनइनक्रिप्टेड रहेगा, वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। और जब HTTPS हो गया तो जो भी डेटा हम भेजेंगे दैट विल बी इनक्रिप्टेड, नोबडी कैन रीड इट जब तक कि वो डिलीवर नहीं होता है। तो वो इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि HTTPS कैसे चेंज करते हैं, कैसे HTTP होना चाहिए या फिर HTTPS होना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न, बट एट द मोमेंट यू शुड जस्ट लर्न द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS इज द सिक्योरिटी ट्रांसमिशन। सिक्योर ट्रांसमिशन HTTPS अगर है तो होगा, और अगर HTTP पे है तो ये इनसिक्योर ट्रांसमिशन होगा। और इसका क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक है, यू विल कम टू नो लेटर। फिर उसके बाद www, तो उसको जाना कहाँ पे है, तो उसको ये वाला जो पार्ट है www, उसको हम लोग होस्ट नेम कहते हैं, और इट विल बी कॉमन फॉर एवरी URL, राइट? कहीं पे आप www डालते भी हो, कहीं पे नहीं भी डालते हो, तो इट्स इज यूजुअली कॉल्ड होस्ट नेम। नाउ यहाँ से citytech.cuny.edu, सो ये पूरा का पूरा ये जो है सो आपका हो गया डोमेन नेम, ठीक है? इसको बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम और मे बी डोमेन नेम। और ये एडू है, एडू है तो EDU है, तो इसका मतलब एजुकेशन का साइट है, राइट? और आपको .com, EDU, .in, इस सब के बारे में हम लोग और भी बताएंगे ना। उसके बाद आपको जाना कहाँ पे, तो बेसिकली जैसे हम लोगों ने बताया कि जो आपका वेब सर्वर होता है, वेब सर्वर पे आपने कोई ये वाला साइट को होस्ट किया हुआ है, राइट? और उसके बाद ये वाला एक फोल्डर बनाया हुआ डायरेक्टरी पाथ है यहाँ पे, यहाँ तक तो चला गया इंटरनेट पे। उसके बाद यहाँ पे आगे इसमें डायरेक्टरी पाथ है, इसके फोल्डर में आपने ये वाला कंटेंट रखा हुआ है, जहाँ पे कि इंडेक्स, जैसे ही कोई ये वाला साइट टाइप करेगा तो index.html में जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपको दिख जाएगा आपके ब्राउजर पे, राइट? इसको और थोड़ा डिटेल, एनी क्वेश्चन ऑन टू इट, कि अगर हमसे कोई पूछे URL देके कि बताओ कि इस URL का क्या मतलब है, तो आर वी एबल टू एक्सप्लेन इट? Yes, sir. Yes, sir. यस यहाँ तक का हो गया फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। उसके बाद उसका जो सर्वर पे होस्टेड है, जो हमने जिस पर्पस के लिए रखा हुआ है, हो सकता है कि एकेडमिक्स यहाँ पे हट जाए, केवल index.html हो जाए, तो जिसने भी इसको बनाया होगा तो उसने सोचा होगा कि चलो एक फोल्डर बना देते हैं और उसमें हम ये वाला फाइल डालते हैं। अल्टीमेटली द होल पर्पस टू पब्लिश दिस index.html इन योर ब्राउजर और वॉट एवर द मीडियम यू आर यूजिंग। गुड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जब आप व्हाट हैपेंस व्हेन यू टाइप ए URL इनटू ए ब्राउजर एंड प्रेस एंटर, सोचते हो कभी आपने सोचा है कि आखिर कैसे चल जाता है इंटरनेट, और कभी कैसे क्यों डाउन हो जाता है? कोई बता सकता है? कभी आप लोग सोचते हो कभी? एनीबॉडी? लाइक सर, मतलब लाइक हम कुछ टाइप करते हैं तो देन उसका एक IP एड्रेस होता है। तो देन वो IP एड्रेस पे जो भी फाइल्स है या वो उसको एक्सेस करता है। अगर वो एक्सेस करता है देन हमको शो करता है कि अगर ये वेब पेज है और उसके बहुत सारे इंडेक्सेस है और इंटरकनेक्टिंग है वो, देन आपको हमें शो होता है कि वो वर्क होता है। वेरी As per सर्वर my knowledge. सर्वर डाउन तभी होता है जब कोई एक वेबसाइट पे उसका लिमिट से ज़्यादा उस पर एक्सेस करता हो एक ही टाइम पे। जैसे एग्जांपल के लिए हर एक वेबसाइट का इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि जो मिलियंस ऑफ एक्सेस को एक साथ वो हैंडल कर सके, तो उसके लिए जो टाइम लगता है तो साइट डाउन होते हैं। अगर एक साथ अगर कोई वेबसाइट पे 1 लाख 2 लाख पीपल एक साथ एक्सेस करे सेम टाइम सेम मिनट, तो उसको रिस्पॉन्स करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मालूम चलता है कि सर्वर डाउन है। कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है तो समझते चलो सर्वर इसका डाउन है, सर्वर डाउन चल रहा है, थोड़ा टाइम बाद देखेंगे, थोड़ा टाइम बाद इसको ट्राई करेंगे। 1 सेकेंड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उसको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया रोशन। उसको साइबर सिक्योरिटी के टर्म पे रेट लिमिटिंग बोलते हैं। कि हर वेबसाइट पे हर फायरवॉल का जो है ना एक रेट जो है डिफाइन होता है। रेट मतलब
कि कितना ट्रैफिक जो है पर सेकंड का आना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड रेट, है ना। बोलते हैं ना कि कितने रेट का है, मान लो अगर कुछ सब्जी खरीदने जाओगे तो कितने रेट का है, तो बोलते हैं ना कि मतलब इतने रुपए दर्जन केला है, तो एक दर्जन का इतना प्राइस है। तो सेम तरीके से सिक्योरिटी में भी जब रेट हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये यही होता है कि कितना ट्रैफिक उस उतने पर्टिकुलर सेकंड में अलाउ है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं करेगा जैसा वो बनाया गया था। सर सर इसे जनरली DDoS जब अटैक हम भी तो फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, तो जैसे हम्म फॉर्म्स वगैरह भरते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कि सर्वर डाउन हो गया या सर्वर एरर दिखाता है, तो हम्म। ये किस कारण होता है सर? मीन्स यही रीजन होता है क्या? हाँ जो आप बता रहे हैं। मतलब मैक्सिमम केस में ये रीज़न होता है डेफिनेटली कि सर्वर के पास ऑलरेडी इतने रिक्वेस्ट चला गया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो अब फर्दर रिक्वेस्ट जाएगा तो उसको वो कैटर करने के लिए थोड़ा टाइम लगाएगा, या फिर वो अपने अगले साइकिल में कैटर करेगा। तो बहुतों के मैक्सिमम चांसेस ये है कि ये रीज़न हो सकता है, लेकिन और भी कई रीज़न है। जैसे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, अलग अलग टर्म्स आएगा ना, डॉस होते हैं, डेडॉस होता है, तो वो अलग डिस्कशन में हम लोग जाएंगे। पहले धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं हम लोग। राइट। लेकिन एंड definitely डाउन होने का बहुत सारा रीजन है, राइट। हम्म, वो ऐसा नहीं है कि आपका बहुत सारा हिट हो गया तभी डाउन हो गया, हो सकता है सर्वर को ही कोई स्विच ऑफ कर दिया हो हाँ सकता है वायर निकाल दिया। तो हाँ दोज आर द कॉमन थिंग्स विच विल यू विल स्टार्ट knowing about all of them when you start studying, reading and keep thinking about it. ओके तो लेट्स फोकस ऑन कि क्या होता है इंटरनेट पे। अगर आपने ब्राउजर पे आपने लेट्स से टाइप किया https www.example.com into your browser, what happens? The browser needs to find the correct server that hosts the website. करेक्ट सर्वर क्या है? example.com. अब इसको मिलेगा कहाँ पे? तो सबसे पहले तो ये देखता है डीएनएस लुकअप। डीएनएस लुकअप का मतलब क्या है? द ब्राउजर चेक्स इट्स कैश और आस्क्स द डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर का काम होता है कि ट्रांसलेट योर होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस, क्योंकि जब तक वो आईपी एड्रेस उसको नहीं मिलेगा तब तक वो जा ही नहीं पाएगा उस सर्वर तक। नाउ द डीएनए ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू योर आईपी। सबसे पहले तो अपने कैश में देखता है, अपने आपके सिस्टम के कैश में देखता है कि क्या ये कभी ये साइट किसी ने ब्राउज किया है कि नहीं किया है, इस साइट इस लैपटॉप पे हुआ है कि नहीं ब्राउज। अगर उसको मिल जाता है तो वो डायरेक्ट सेंड कर देता है वो बैकएंड सिस्टम के पास। अगर नहीं हुआ है तो वो फिर से वही काम करता है कि पहले तो अपना डोमेन भेजता है, उसके बाद ट्रांसलेट करता है कि इस ये .com पे है कि edu पे है या फिर इन पे है। सबसे पहले वहां से शुरू करता है, वहां पहुंचता है, फिर वहां से जाने के बाद देखता है कि हमारे पास ये किस आईपी पे होस्टेड है। द आईपी एड्रेस, द होम एड्रेस ऑफ द वेबसाइट सर्वर, जहां पे वो पूरा का पूरा साइट जो होस्टेड है, सारे मशीन के पास, सारे सर्वर के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। देन इट रीचेज ऑन टू दैट आई, और वहां पे पहुंच के फिर उसके बाद क्या करता है? ब्राउजर एस्टैब्लिश ए कनेक्शन। द ब्राउजर कॉन्टैक्ट द सर्वर यूजिंग द आईपी एड्रेस। आपने यहाँ से एग्जांपल टाइप किया लेकिन वो ट्रांसलेट हो गया आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट होने के बाद उसने सर्वर के पास, जहाँ पे ये वाला डोमेन होस्टेड है example.com, वहां से कनेक्शन लिया। फिर उसके बाद बोलता है कि ए टीसीपी कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड हैंड शेकिंग। अब टीसीपी क्या है? ए ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अगेन इट इज ए वेरी ब्रॉडर टॉपिक दैट यू विल लर्न, बट यहाँ पे अगेन ये किसी भी कनेक्शन को रन करने के लिए पूरे इंटरनेट पे टीसीपी का यूज होता है। नाउ अब ये हो गया, इसने टीसीपी कनेक्शन बना लिया और इसको बोलते हैं टीएलएस एसएसएल हैंडशेक हैपेंस टू सिक्योर द कम्युनिकेशन। अब उसने देखा कि किस चीज पे होस्टेड है, एचटीटीपी पे कि एचटीटीपीएस पे है, और अब ये कनेक्टिविटी आपके मशीन से और आपके उस सर्वर पे, उस वेबसाइट पे हो गया, कनेक्टिविटी बन गया। नाउ द ब्राउजर सेंड्स द एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अब आपके पास जब वो कनेक्शन बन गया, देन इट सेंड्स द रिक्वेस्ट कि अब मुझे ये वाला साइट ला के दो, राइट, टू द सर्वर। एग्जाम्पल प्लीज सेंड मी द होम पेज। ये मल्टी वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद जब आप जाते हो, रंजन, इफ यू वांट टू ऐड इन, बालाजी इफ यू वांट टू ऐड इन एनीथिंग प्लीज गो, फील फ्री टू ऐड। ठीक है सर। ओके हेलो। देन जब हैंड शेकिंग हो जाता है, पूरा पूरा वो कनेक्शन बन जाता है, देन इट ब्रिंग्स द example.com होम पेज ऑन योर स्क्रीन। और ये रिस्पॉन्स में क्या क्या हो जाता है? सेंड एंड रिक्वेस्ट जाता है तो HTML का पेज आता है, CSS डिजाइन जो भी बना होता है, जो कभी किसी भी साइट का, उसको बोलते हैं CSS। फिर उसके बाद अगर जावा स्क्रिप्ट का यूज हुआ हो तो जावा स्क्रिप्ट होते हैं, और मे बी साइट पे वीडियो, इमेज एंड अदर रिसोर्सेज आर आल्सो देयर। या शिवम प्लीज गो अहेड। सर ये यूआरएल असाइन कैसे होता है? जैसे GoDaddy से तो हम लोग डोमेन रजिस्टर करते हैं, तो बैकएंड में ऐसा क्या होता है कि वो यूआरएल मिल जाता है किसी को? यूआरएल आपने डीएनएस पे अपना नाम रजिस्टर कर दिया, राइट। किसी भी देखते हो आप, जब किसी भी साइट को ढूंढने जाते हो तो किसी ने ऑलरेडी वो रजिस्टर किया हुआ है, आपको नहीं मिलता है। देन यू हैव टू कम अप विद द न्यू नेम। बेसिकली GoDaddy पे जाके आप उसको बोलते हो कि मेरे इस नाम से
मेरे एक डीएनएस में मेरा नाम रजिस्टर कर दो। वो उसका होल पर्पस होता है कि डीएनएस ऐसा है कि एक यूनिक प्लेस है जहाँ पे दुनिया के सारे यूआरएल्स के सारे डोमेन्स के नेम रजिस्टर होते हैं। राइट राइट। मतलब उसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले जैसे हम लोग GoDaddy से एक डोमेन खरीदे हैं, तो इंटरनेट पे जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, देखा कि इंटरनेट पे कुछ भी नहीं है, सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से नेटवर्क्स में, दैट इज इंटरनेट। तो अगर आपने कुछ डोमेन खरीद भी लिया तो उस डोमेन के लिए कहीं ना कहीं एक जगह भी लेना पड़ेगा, तो हमें उसका होस्टिंग लेना पड़ता है, राइट। तो आपने GoDaddy से या तो डोमेन ले लिया, अगर GoDaddy से ही होस्टिंग ले लिया तो GoDaddy को आप बता दोगे कि भाई ये हमारा होस्टिंग का आईपी है और हमें जो है इस पर्टिकुलर डोमेन से उसको मैप करना है। तो अब GoDaddy क्या करेगा, उसके पास जो डीएनएस रहेगा, जो अभी डीएनएस लुकअप सेकंड स्टेप पे है, वो सारे डीएनएस को ना वो एड्रेस भेज देगा कि अगर इस वाले डोमेन से कुछ भी आएगा तो उसका एड्रेस ये है जो कि हमारे पास है। आईपी एड्रेस जो सर ने बताया ना, आईपी एड्रेस भी हम लोग देखेंगे पूरे अच्छे से कि आईपी एड्रेस बेसिकली उस पूरे नेटवर्क में, जो इंटरनेट हम लोग बात कर रहे थे, पूरे नेटवर्क में आईपी एड्रेस इज योर पिन पॉइंट लोकेशन ऑफ योर होम। तुम्हारे घर पे अगर मेरे को चिट्ठी भेजनी है तो डेफिनेटली तुम्हारे घर का पता हमें चाहिए, और दैट पता इज आईपी एड्रेस, राइट। तो फिर वो सारे डीएनएस में फ्लडिंग हो जाएगा और बता दिया जाएगा कि इस डोमेन का एड्रेस ये है, और जैसे ही उस पर कोई क्वेरी आएगा तो फिर बैकएंड में उस लोकेशन पे पूरे उस वेबसाइट का, इस तरीके का मैंने एक चैट में एक सैम्पल वेबसाइट का एक फोल्डर का स्ट्रक्चर भेजा है। इस तरीके से फोल्डर रहता है, एक index.html पेज रहता है, फिर एक फोल्डर एसेट का बना होता है, या फिर एक इमेज का फोल्डर बना होता है। तो ये कुछ नहीं होता है, मतलब जनरली एक फोल्डर के स्ट्रक्चर टाइप में होता है, जिसके बेस में index.html है, जो example.com पे क्लिक करते ही वो लोड हो जाता है। आई होप आंसर थोड़ा मिला होगा इससे, शिवम, या जैसे और यस जैसे आपके यस सर। कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हो आप, फोल्डर में सब फोल्डर बनाते हो, फिर उसमें सब फोल्डर बनाते हो, उसी तरह से जो हमारा वेब सर्वर होता है उसमें आप साइट की सारी डिटेल, वेबसाइट की डिटेल डालते हो। जैसे ही आपने और उसको पब्लिश करते हो, पब्लिश करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर के यूज होते हैं। जैसे कि आप विंडोज पे अगर होस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आईएस चाहिए होता है, अगर आप लाइनेक्स पे यूज कर रहे हो तो उसको अपाचे टॉमकैट यूज होता है। और फिर उसके बाद आपने हो सकता है इंटरनल ही बनाया, तो आपको बाहर नहीं जाएगा ढूंढने के लिए आपका यूआरएल, आपके अंदर से ही ब्राउजर बाहर नहीं जाएगा ढूंढने, वो आपको इंटरनल नेटवर्क पे ही ले लेगा। लेकिन अगर कोई आपने google.com किया तो google.com सबसे पहले जाके डीएनएस के पास जाके देखेगा कि इसका क्या है, मतलब ये अवेलेबल भी है कि नहीं डोमेन। उसको बोलता है डीएनएस सर्वर, वहां से रिस्पॉन्स करता है कि यस ये अवेलेबल है, तो बोलता है फिर से आपका कंप्यूटर ब्राउजर उसको बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे और ये डीएनएस है और इसका आईपी एड्रेस ये है। जब उसको आईपी एड्रेस मिल जाता है तो आपका कंप्यूटर ब्राउजर फिर से उसको सेंड करता है वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर के पास, राइट। और सर्वर से जब रिस्पॉन्स आता है तो फिर आपको वो 3-4 वे ऑफ हैंड शेकिंग है, ये एक ही साथ नहीं हो जाता है। एक बार रिक्वेस्ट जाता है, उसको एक्नॉलेजमेंट रिस्पॉन्स आता है, फिर उसको एक्नॉलेजमेंट जाता है, एक्नॉलेजमेंट के बाद फिर से एक रिक्वेस्ट जाता है और वो डिस्प्ले होता है। तो लोग इसमें छोटा सा एक मैं बताना चाहूँगा। हम्म बेसिकली हमें नंबर से याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम्म तो डीएनएस क्या करता है, नंबर के ऊपर मैपिंग करके उसको डोमेन में बताता है। फॉर एग्जांपल अभी facebook.com या google.com, इससे हमें ज़्यादा इजी से याद रहेगा। बट अगर वही जगह में आईपी है तो आप आईपी से हो सकता है 93.184.216, इसको रिमेंबर करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए डीएनएस यूज़ होता है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, आपको जैसे आपके सिस्टम में है, आप cmd कमांड ओपन करके जस्ट पिंग google.com करेंगे तो उसकी आईपी आ जाएगी बैक साइड में। तो इसी तरह आता है, इसका यूज होता है। हियर इट इज, लेट्स से दैट अगर मुझे अपने हम्म मशीन का आईपी एड्रेस देखना है ये आईपी तो कन्फिग करेंगे तो आपका आ जाएगा आईपी। आईपी एक कमांड होता है, हम्म ये मेरा दिख गया, ठीक है। यहाँ तो पे ये देखो सारी ये चीजें। होगी IPv4 में आपकी आईपी दिखा रही है। ओके, और ये आपका गेटवे आईपी है, ये तो हम आगे क्लास में समझेंगे। हम्म बट यही आईपी का यूज होता है बेसिकली facebook.com। तो डीएनएस है बट एक्चुअल में सर्वर के अंदर वो आईपी में राउटेड होता है। वो आईपी हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें उसको डीएनएस से मैप करना पड़ता है, और जिससे हम उसे याद रख सकते हैं। जैसे लोग अब पिंग google.com करिए, या तो इस तरह से देखिए बैक साइड में इसकी आईपी चल रही है। तो आप इस आईपी से तो याद नहीं रख सकते, तो इसलिए डीएनएस उस पर चल रहा है, सो डोमेन दिख रहा और है सिमिलरली google.com। अगर मैं इस आईपी को भी पिंग करता हूँ तो इट विल ब्रिंग। आप आईपी से भी ओपन कर सकते हैं गूगल को, ऐसे। और ऐसा है कि गूगल का, मतलब गूगल के बैकग्राउंड में देखोगे ना तो गूगल के पास कम से कम 1000 आईपी होंगे। तो हम्म गूगल के एड्रेस के पास जाने के लिए आप सारे आईपी को तो याद नहीं कर सकते ना, इसलिए सबसे इजी तरीका है कि नाम याद कर लो, google.com डालो। अब बाकी वो उसका टेंशन है कि वो कौन से आईपी के थ्रू आपको गूगल की सर्विसेज दिखा रहा है, लेकिन हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि हमें गूगल खोल के मिल जाएगा। राइट, ठीक है। एनी क्वेश्चन चंदन? आई थिंक यू हैड सम क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, difference between browser and web browser?
both Browser are and web. both are same. You name it. Web browser is the browser. There is no difference. Okay, sir. ओके सो गोइंग ऑन टू नेक्स्ट. ठीक है, तो अभी तक हमने ये अभी तक पढ़ लिया कि बेसिक चीजें कि आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, लैन वैन क्या है. अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी. अब मैं फिर से कमिंग बैक टू आवर साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, राइट, साइबर सिक्योरिटी लर्निंग. तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी इज प्रीडोमिनेंटली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: गवर्नेंस, कंप्लाइंस एंड रिस्क. अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मुझे किस एरिया में जाना चाहिए, कौन सा एरिया बहुत अच्छा है, कौन सा एरिया जो मैं अच्छे से सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न इट इजिली. To answer all these questions, this is the today's class is very important. So you will understand the difference between all these areas. Governance क्या होता है, compliance क्या होता है, and risk क्या होता है, and then you can decide. Then you can think about yourself. Okay, this area is suitable for me. That area I can take it for in future, but I can start with this particular area, cyber security का. And then you can bring up your question. So basic cyber security governance क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और एनीथिंग, इफ यू हैव टू रन समथिंग, इवन योर हाउस, even if your business, a small business, a small shop, school, college, or maybe big organization, you should have some kind of framework. You should have some kind of, guidance from somebody that you should be working, or you should be, putting all these things in your family, in your organization, in your school, in your company, so it will run properly. So in cybersecurity terms, what I can say, that governance is the framework of policies, processes, rules and responsibilities, or to ensure cybersecurity is aligned with the business objective. Basically, कि आपके पास एक पॉलिसी है, एक आपके पास रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है, और प्रोसेसेस हैं. हु डिफाइंस इट? इसको बनाता कौन है? इसका जो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बना रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर होगा वो बना रहा होगा, क्योंकि उनको उनके कंपनी के बिजनेस के बारे में दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और की पर्सन हु नोज अबाउट देयर बिजनेस. They know about the background of the business, the current situation of the business, future of the business. So they set up some kind of guidelines, policies, procedures. That is called governance. And that once they set up some kind of set framework, that will be implemented to whole organization. Now, if we focus on the cyber security governance framework, तो उसमें गवर्नेंस में बोलेंगे, एक तो बिजनेस का हो गया कि बिजनेस कैसे रन होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. उस बिजनेस को रन करने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी विल बी द पार्ट ऑफ दैट, साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस विल बी द पार्ट ऑफ दैट. और उस साइबर सिक्योरिटी को रन करने के लिए अगर मान लो कि कंपनी ने बोला कि हमें हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए वी शुड हैव मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि आपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड तो डाला ही डाला, बट यू शुड ऑल्सो send the OTP. The OTP should be sent, and that should be sent to your mobile or any kind of software. From there, you will get that OTP and then able to log on onto that site or maybe your machines. तो वो एक सिक्योरिटी का जो गवर्नेंस का पूरा जो फ्रेमवर्क होता है वो आपके टॉप मैनेजमेंट बनाती है. वंस दैट टॉप मैनेजमेंट डिसाइड दैट ओके ऑल दिस सिक्योरिटी थिंग्स शुड बी डन, उसका क्या कैसे बनाती है मैनेजमेंट को पता होता है कि व्हाट एक्चुअली दे आर ऑपरेटिंग, इन विच एरिया दे आर वर्किंग ऑन, and where they are working on, what kind of regulations they have to follow. तो based on उनका क्या कंपनी काम कर रही है, उस कंपनी से रिलेटेड क्या रेगुलेशंस उनको फॉलो करना है, किस कंट्री में वो रन कर रहे हैं बिजनेस अपना, किस डेटा को वो हैंडल कर रहे हैं, किस विच काइंड ऑफ थिंग्स दे आर वर्किंग ऑन. तो बेस्ड ऑन ऑल दोज थिंग्स वो बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी टीम को कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. तो आप जाके देखो कि हमें क्या क्या गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने हैं, क्या क्या अगर एविएशन इंडस्ट्री में रन करना है तो एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है कि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हो, गवर्नमेंट की अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज हो, कि कोई भी अगर एविएशन इंडस्ट्री अगर रन कर रहा है तो दे मस्ट हैव टू कंप्लाई विद दीज पॉलिसीज. देन अपना एविएशन का जो एक ग्रुप होता है उनकी कुछ पॉलिसीज होंगी, एयरलाइंस की कुछ पॉलिसीज होंगी, सिक्योरिटी पॉलिसीज या सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा. सिमिलरली आपकी अपनी कंपनी की पॉलिसीज होगी. सो ऑल दिस थिंग्स top to bottom level of responsibility, roles and responsibilities and policies, that is governed by your top management, distributed across the organization, and it is the security team's responsibility who will be deploying those policy and procedures all over the organization. Security team कौन कौन सी होगी? ये governance
जो हमारा जो मैनेजमेंट है, वो आपके सिक्योरिटी के जो सबसे टॉप बॉस होते हैं उसको बोलते हैं सीसो, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। वो उनको बताएगा कि हमें ये सारी चीज़ें अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करनी है। सीसो रिव्यू करेगा एंड सीसो विल टॉक टू देयर सबऑर्डिनेट्स, जो भी उनके टीम में लोग हैं उनसे बात करेगा और उनको बताएगा ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें डॉक्यूमेंट करनी है, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है, मॉनिटर करना है, और उसका हमें ये देखना है कि इसका इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली और नॉट। तो ये ओवरऑल गवर्नेंस का काम है। अब इसमें कौन, नाउ लेट्स हैव सम की पॉइंट्स। एस्टैब्लिश द अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। बेसिकली कि आपने किसी को अकाउंटेबल बनाया कि ये पॉलिसी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट होना चाहिए, और मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया, दैट विल बी प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड। उसके बाद गवर्नेंस का क्या काम क्या होता है कि कंपनी को एक प्रॉपर ढंग से सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे कंपनी में ये पॉलिसीज हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, हमारा ये गाइडलाइंस है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टू फॉलो दैट पॉलिसी। इंश्योर अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी। कि अगर मान लो कि टॉप मैनेजमेंट बोलता है कि मुझे पूरा का पूरा अपना वेबसाइट एकदम पूरा सिक्योर चाहिए, और जो डेवलपर है वो फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो वो पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आपका गवर्नेंस का काम होता है कि ये सारी चीज़ों को क्लब करना, सारी चीज़ों को देखना और प्रॉपरली उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी सेटअप साइबर सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमिटी थी टू ओवरसी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट एंड अप्रूव न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी। वही अगर जैसा कि मैनेजमेंट ने बोला कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको टाइम चाहिए, रिसोर्स चाहिए, पीपल चाहिए, आपको मनी चाहिए, तो वो साइबर सिक्योरिटी कमिटी बनती है। जरूरी नहीं है कि कमेटी बने ही बने, हो सकता है कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो तो एक आदमी उसको देख सकता है, 4 आदमी देख सकता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। नाउ अब ये गवर्नेंस का क्या, कौन जा सकता है इसमें? आपका गवर्नेंस का उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो कि ऑलरेडी पहले से किसी जॉब में है, उनकी इंग्लिश अच्छी है, उनको लिखना अच्छा आता है, उनको पढ़ना और अंडरस्टैंड करना रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको आता है। तो दिस एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर देम। और इसके पास भी बहुत सारे अदर्स ऑप्शन है कि गवर्नेंस में आपको क्या 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 चीजें आप कर सकते हैं। उसमें भी एक और भी बहुत सारी चीजें हैं गवर्नेंस वाला पार्ट में, लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो जिनको जिनको कॉम स्किल्स अच्छा है, जो कि अपना कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो कि फॉर्म रहते हैं अपने डिसीजन पे। क्योंकि आप जब सिक्योरिटी का कुछ चीज लाते हो कहीं पे, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं मैं तो नहीं फॉलो करूंगा। देन यू मस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप इतने फर्म हो, आप कोई अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो यू कैन टेक नेसेसरी स्टेप टू गेट दैट सिक्योरिटी थिंग्स इंप्लीमेंटेड। ओके, एनी क्वेश्चन? और ये कोई भी स्टार्ट कर सकता है कहीं पे भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है दे कैन इंप्रूव देयर इंग्लिश, बट इट इज वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ देम हु आर ऑलरेडी इन सम काइंड ऑफ जॉब्स एंड जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट एनीबडी कैन स्टार्ट। फिर उसके बाद आता है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस का, इफ आई रीड इट सिंपली, द डेफिनेशन ऑफ दिस कंप्लाइंस, द कंप्लाइंस इज अबाउट adhering to laws, regulations and standards that apply to cyber security and data protection। ये जो लॉज हैं, रेगुलेशन है एंड स्टैंडर्ड्स हैं फॉर डेटा प्रोटेक्शन, ये पूरी दुनिया में सब जगह इंप्लीमेंटेड है। सारी दुनिया को ये पता है कि ये 3 चीजें उनको लगानी ही लगानी है। उनका गवर्नमेंट का लॉ होगा, रेगुलेशंस होगा, एंड उनको डेटा प्रोटेक्शन देना है। अब जैसे कि आपको मैं इंडिया का बताता हूँ कि आपका इंडिया का जो जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, अब वो जितनी भी कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है, अगर वो डेटा पे किसी का सेंसिटिव डेटा या कंपनी का डेटा या किसी और का डेटा अगर हैंडल कर रही है, तो दे मस्ट हैव टू कंप्लाई विद दैट इंडियन डेटा प्रोटेक्शन लॉ। उसके बाद अगर मान लो कोई कंपनी अगर यूरोप के किसी कंट्री से कंपनी को का डेटा अगर प्रोसेस कर रही है इंडिया से, तो दे विल हैव टू एडहेयर विद दैट यूरोपियन कंट्रीज लॉज एंड रेगुलेशंस, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो ये आपको, जिसको कि लॉ अच्छा लगता है, जिसको कि कानून अच्छा लगता है, जिसको कि ये अच्छा लगता है कि पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, वो इसको पिक कर सकते हैं। और इसका क्या काम होता है? इंश्योर लीगेसी एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि अगर आपने ये उसके लीगल रेगुलेटरी लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, तो इसमें बहुत ही हैवी पेनल्टी भी लगती है। तो जो भी इस एरिया को देखता है उसको ये इंश्योर करना होता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं उस लॉज के डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड वो फॉलो हो रहे हैं, ये उनका काम होता है। उसके बाद बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स। अगर आपने बोल दिया कि मैं ये वाले कंप्लायंस से हूँ और मेरा ऑडिट हुआ है, तो आपका एक ट्रस्ट भी बढ़ता है कस्टमर के साथ, और जो भी किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है और जो उससे आपकी कंपनी से एसोसिएटेड है।
और वो ऑन रेगुलर बेसिस पे आपका ऑडिट होता है। और ऑफ कोर्स, और जिनको ऑडिट अच्छा लगता है दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस और स्टार्ट दिस और पिक दिस कंप्लाइंस पार्ट। एग्जाम्पल क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन हैंडलिंग हेल्थ केयर डेटा इंश्योर्स कंप्लाइंस विद हिपा बाय इनक्रिप्टिंग पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड परफॉर्मिंग रेगुलर कंप्लाइंस ऑडिट। ये हिपा अमेरिका का हेल्थ सेक्टर को हैंडल के डेटा को हैंडल करने के लिए एक लॉ है दैट अगर इंडिया में बैठा कोई कंपनी अगर अमेरिकन लोगों का हेल्थ केयर का डेटा एक्सेस कर रहा है तो उसको हिपा के जो पॉलिसीज हैं, हिपा के जो गाइडलाइंस हैं, दे मस्ट हैव टू फॉलो। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। डेफिनेशन क्या बोलता है? रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज, एसेस एंड मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट कुड इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस। अब ये रिस्क आइडेंटिफाइज, कहाँ आइडेंटिफाई करोगे? रिस्क कहाँ होता है? तो रिस्क होता है जहां जहां आपका डेटा होता है। डेटा किस फॉर्म में होता है? जैसा मैंने आपको बताया, टेंजेबल फॉर्म में और इनटेंजेबल फॉर्म में। अगर इंटरनेट पे डेटा है और उसको जानना है कि ये डेटा सिक्योर है कि नहीं सिक्योर है, देन द पेन टेस्टर्स रोल विल बी देयर। द पेन टेस्टर उसके साइट को जाएगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करेगा और ट्राई टू फाइंड इट आउट कि अगर जो लॉ जो बना हुआ था, जो पॉलिसीज और स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस जो मैनेजमेंट ने ड्राइव किया हुआ है और इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है टेक्निकली, राइट। एक तो ये हो रही है कि टेक्निकल आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हो। टेक्निकल रिस्क आइडेंटिफाई करते हो वेबसाइट पे, कंपनीज के AWS प्लेटफॉर्म पे, और उनका जहां जहां डेटा जो है सो एक्सेस करते हो आप कंप्यूटर के थ्रू, ब्राउजर के थ्रू, उसको आप रिस्क एसेस करते हो। उसी को वो काम है पेनिट्रेशन टेस्टर का, कि आप उसमें ढूंढो कि कोई वीकनेस तो नहीं है। अगर कोई डेटा, अगर कंपनी ने बोला है कि उनका डेटा इनक्रिप्टेड है, तो पेन टेस्टर का काम होता है चेक करना कि वो इनक्रिप्टेड है कि नहीं है। उनका काम होता है कि इंश्योर करे कि इंक्रिप्शन की जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो अनब्रेकेबल हो। ऐसा ना हो कि इंक्रिप्शन तो है बट उसको अनइनक्रिप्ट भी किया जा सकता है, डिक्रिप्ट भी किया जा सकता है, सॉरी। देन वो हो गया आपका आईटी से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपका गैप हो सकता है कि एचआर का डेटा कहाँ पे है। एचआर डेटा इतने सारे रिसोर्सेज का रखती है, अगर वो हार्डवेयर पेपर पे रखती है तो वो सिक्योर रखती है कि नहीं रखती है। वो काम भी आप, हमारा काम होता है साइबर सिक्योरिटी का। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला, एसेस करना कि कैसे, अगर मान लो कि एचआर ने बोला कि उनका सारा पेपर का जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने कैबिनेट में रखा हुआ है, लॉक में रखा हुआ है, नाउ दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि उन्होंने बोला तो वो है, सही है, बट वेदर दे आर एडहरिंग टू दैट पॉलिसीज और नॉट। देन मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। उसके बाद आप लोगों को बताते भी हो, टेक्निकल अगर फाइंड करते हो, वनरेबिलिटीज फाइंड करते हो आप वेबसाइट पे, तो आप उस टीम को बताते हो कि देखो ये मैंने वीकनेस आइडेंटिफाई की, वनरेबिलिटी आइडेंटिफाई की, एंड दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन remove these weaknesses, remove these vulnerabilities and make your IT infrastructure और वेब एप्लीकेशन, वेब सिस्टम सिक्योर। ये हमारा काम होता है। और ये कौन इसमें कर सकते हैं? जिनका की इंटरेस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनको पता है, जिनको लाइनेक्स के बारे में पता है, विंडोज के बारे में पता है, जिनको कोडिंग आती है, जिनको इथिकल हैकिंग का अच्छा लगता है करना, टेक्निकल है थोड़ा बहुत, दोज गाइज कैन do the technical part of risk assessment, and this is which is our next class which is starting from next week। ethical hacking का क्लास होगा, वहां से आप लोग वो टेक्निकल चीज आपसे सीखना शुरू करेंगे। इसका रिस्क मैनेजमेंट का की पॉइंट क्या होता है? फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग एसेट एंड फ्रॉम थ्रेट्स एंड वनरेबिलिटीज। थ्रेट्स एंड वनरेबिलिटीज जो मैंने बोला, ये इसका पूरा, अब थ्रेट क्या होता है, वनरेबिलिटीज क्या होती है, दैट इज अगेन वन अनदर एरिया जहां पे आपको पॉलिसीज लिखनी पड़ती है। आप किस चीज को थ्रेट मानोगे, किस चीज को वनरेबिलिटीज मानोगे? चलो टेक्निकल तो समझ गया कि आपने सीधा दिखा दिया कि ये वाला एक्सप्लॉइटेबल है, ये वाला लिंक आपका नहीं चल रहा, इस वाले लिंक में मैंने कुछ मैलिशियस फाइल अपलोड कर दिया। बट उसको, उसके अलावा भी बहुत सारे थ्रेट्स एंड वनरेबिलिटीज हैं, और जिसको कि हम एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट का एक अलग ही डोमेन है, उसमें भी आप जा सकते हो। इसके अलावा कि जिसमें आप बताते हैं कि पूरी की पूरी पॉलिसीज बताते हैं, पूरा प्रोसेस बनाते हैं, और कि जहाँ पे आप रिस्क आइडेंटिफाई करते, पहले तो आप ये सेट करते हैं कि आपको रिस्क का कैसे आपको मैनेज करना है, कौन कौन से रिस्क मैनेज करने हैं, एंड देन यू गो थ्रू ए कंप्लीट 5-6 स्टेप्स विच यू कीप working on and keep checking, keep auditing and keep evolving onto your risk assessment process। रिस्क असेसमेंट के बाद आपका बैलेंस सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस नीड, मतलब आपने अगर जो भी इन्वेस्ट हो रहा है वो आपको इस चेक करना है इस एरिया में कि वो सही से इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिजनेस का जो नीड है, अगर उसने बोला है कि मेरा वेबसाइट एकदम सिक्योर होना चाहिए, मेरे कस्टमर का डेटा सिक्योर होना चाहिए, वो सेफ है कि नहीं सेफ है। तो ये हमारा काम होगा रिस्क असेसमेंट के, टेक्निकल नॉन टेक्निकल रिस्क असेसमेंट।
Example, a financial institution conduct regular penetration testing to identify risk in its online banking platform, then implement security patches and monitoring tools. आपका उनका असेसमेंट हो गया और उसके बाद वो उस हिसाब से अपना पेन टेस्टिंग ने रिपोर्ट, पेन टेस्टर ने जो रिपोर्ट दी, बेस्ड ऑन दैट दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू फिक्स दोज वल्नरेबिलिटीज. एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ा? Everyone? Sir, please explain the last point, Which point? The risk management point briefly. ओके, रिस्क मैनेजमेंट, जैसा कि इसमें आपके नाम से ही पता है, रिस्क मैनेजमेंट, इट मींस यू मैनेज द रिस्क टू रिड्यूस एट द लेवल which help organization to stay protected from any kind of harm. अगर मान लो कि पता अगर तो कैसे वो बचोगे उस हार्म से? पहले आपको तो पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क क्या है ऑर्गेनाइजेशन में. तो उस चीज को पूरा एक प्रोसेस होता है कि पहले आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ती है कि रिस्क मैनेजमेंट हमें करना है, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि हमारा रिस्क क्या है. फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अलग अलग वे से होता है. टेक्निकल रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, नॉन टेक्निकल रिस्क आइडेंटिफाई करते हो. फिर उसके बाद आप उसको चेक करते हो कि फिक्स हुआ कि नहीं हुआ. आइडेंटिफाई होने के बाद आपने बता तो दिया कि आपका जो पेपर का सेंसिटिव कॉपी सब था वो ऐसे ही रखा हुआ था और कोई भी उसको देख सकता था. और जब आपने वो रिस्क आइडेंटिफाई किया तो उसके बाद आपने उसको फिक्स भी करवाया. और रिस्क किससे रिलेटेड है? आपके डेटा के कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी का रिस्क आप ऐसे मैनेज करते हो कि आपका जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल अगर है तो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए. अगर वो टेम्पर प्रूफ रहना चाहिए तो वो टेम्पर प्रूफ रहना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए कि जब वो जरूरत हो. अब आपके पास मान लो कि आज आप लॉन्च कर रहे हो एक बहुत बड़ा वेबसाइट, उसके थ्रू बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, एंड जब यू गो फॉर लॉन्चिंग योर साइट इज नॉट वर्किंग. तो बिफोर मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, यू डू द रिस्क असेसमेंट कि हमने ये देख लिया कि वेबसाइट सही है कि नहीं सही है, जो पर्सन हु विल बी लॉन्चिंग इट ही इज अवेलेबल ऑन टाइम और नॉट, और द सिस्टम विच वी आर यूजिंग दैट इज वर्किंग फाइन और नॉट. तो वो पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट है. आई विल टेक वन अनदर क्लास ऑन टू इट, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड Yes, sir. कि किसी भी हार्म को से बचने के लिए आपको प्रॉपर ढंग से एक एनालिसिस करना पड़ता है कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या रिस्क हो सकता है. उससे बचने के लिए हमारा पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट का हमारा प्रोसेस होता है. ओके, और ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है. इसको मैं एक अलग क्लास लूंगा, आपको बताऊंगा. रंजन, वुड यू लाइक टू से समथिंग? और बालाजी? नहीं सर, ऑल गुड. मैं थोड़े बहुत इनके नोट्स भी बना रहा हूँ एट द सेम टाइम, जो आप कवर कर पा रहे हैं, सो दैट आई कैन शेयर द सेम वेरी नाइस. राइट आफ्टर द क्लास. ठीक है, तो आज अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, बालाजी, इफ यू लाइक टू क्विकली गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दैट व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड दैट गाइज दैट विल बी अ वेरी टेक्निकल लर्निंग एंड टेक्निकल क्लास. सो मेक श्योर कि बालाजी जो भी आपको शेयर कर रहे हैं, that you make sure that before that class you get your systems ready. And today Balaji will share you something, and the links that you have to follow, and you have to install a few of the things. Balaji, please go ahead. हाँ, लोग वही मैं आप लोगों को कुछ लिंक दूंगा जो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा. मैं डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दूंगा और कुछ यूट्यूब के वीडियो भी दूंगा. लोग आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, आप पहले ये बता दीजिए कि आप क्या क्लास लेने वाले हैं. हाँ, तो बेसिकली जो क्लास होगा वो एथिकल हैकिंग के ऊपर होगा. और जो अभी कैसे पेनिट्रेट करना है, कैसे हमें रिकॉर्डेंस करना है, कैसे फुटप्रिंटिंग मतलब किसी के इंफॉर्मेशन को कैसे जानना है, सिस्टम को कैसे हम वल्नरेबल है वो पहचानना है, सर्वर में क्या प्रॉब्लम है, नेटवर्क में जो प्रॉब्लम है वो जानना. जैसे आज आलोक सर बता रहे थे लैन वैन और मैन के बारे में, ये तीनों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डीप प्रैक्टिकल करेंगे. जैसे लैन पे अगर मान लीजिए कोई एचटीटीपी आप पूछ रहे थे, राइट? एचटीटीपी एचटीटीपीएस में डिफरेंस क्या है, तो उसके बेस में भी हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे. लाइक एक सिक्योर नेटवर्क पे चल रहा है एक वेबसाइट और एक नॉन सिक्योर में चल रहा है, तो उसमें क्या हम देख सकते हैं. प्लेन टेक्स्ट में कैसे हम पासवर्ड देख सकते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक कैसे कर सकते हैं. और जैसे आपको पता होगा जैसे कि कोई फ्लाइट बुक करते हैं तो वहाँ पे हम कैसे ब्रूट फोर्स करके हम उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें रहेगी.
तो बेसिकली आपका जो सिस्टम है उस पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, जो मैं आपको डायरेक्ट लिंक दूँगा और कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं बता दूँगा आपको। तो पहले तो आपको एक मैं आपको लिंक दूँगा जो उसको जैसे काली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चाहिए होगा आपको और दूसरा आपको बगशूट की ज़रूरत होगी और एक वर्चुअल मशीन होगा, जिसके ऊपर आपको काली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये लिंक दूँगा, आप उसको इंस्टॉल करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे कैसे करना है। थैंक यू बालाजी। सो बेसिकली जो हमने आपको बताया कि आप लोगों को 6 महीने में जॉब जरूर मिल जाएगी, एंड दिस पेनिट्रेशन टेस्टिंग ट्रेनिंग एंड कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एनीबडी who will be maybe trying to find some job, they are not able to find any job. अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आई कैन एश्योर यू दैट यू विल डेफिनेटली गेट सम काइंड ऑफ सम जॉब। इवन आप कहीं पे कंपनी में नहीं काम करो, बट यू विल स्टार्ट अर्निंग समहाउ, दैट इज फॉर श्योर। आप अपने से फ्रीलांस करके भी अर्न कर सकते हो, आप कंपनी में भी जॉब करके आपको मिल सकता है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, एंड हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन ethical hacking learning. So at last but not least, don't use those learning for any malicious activity. उसका पूरा का पूरा पर्पस आपका एथिकल काम में होना चाहिए, ना कि उसका काम आप किसी को तंग करने में, किसी को परेशान करने में या किसी के इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में लगाना है, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। या अंजलि, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. Means before this, I was not knowing so many things are behind it. Only we are searching the web history, just clicking on the button. But so much process are behind this all. I was not aware of that. So thank you, sir, for that, for giving us such knowledge. या Thank you, sir. थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें हैं, और चूंकि हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो हमें पता है कि क्या किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है फ्यूचर में, कैसे पढ़ाई करें बच्चे, कैसी ट्रेनिंग करें बच्चे जो कि उनको हेल्प हो। मुझे पता है कि जॉब मिलेगा, क्योंकि है, ज़रूरत है। अभी मैं कल एक स्टार्ट देख रहा था, इंडिया में 7 लाख के साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है इंडिया में। अब सोच लो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब कितनी निकलती है। पूरे वर्ल्ड में 70 लाख अभी, हाँ 70 लाख के करीब में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो चलो किसी ने डेटा निकाला होगा 7 लाख का, तो छोड़ो 7 लाख, 2 ही लाख होगा। मैं एकदम रिड्यूस कर देता हूँ, सब 5 लाख मैं उन लोगों के लिए छोड़ देता हूँ जो कि एक्सपर्ट हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है। 2 लाख तो आएगा ना आप लोगों के हिस्से में, उसको टारगेट करते हैं। बहुत जॉब है, बहुत जॉब है इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। और ये इथिकल हैकिंग तो आपका एक रास्ता है जो कि आपको तुरंत एंट्री करा देगा साइबर सिक्योरिटी में। 40-50 हज़ार की जॉब के मिनिमम, 30 हज़ार की जॉब तो मिलेगी मिलेगी। तो हम लोग बालाजी, आपके पास जो एथिकल हैकिंग वाला जो जो पीडीएफ है, जी अभी आप वो शेयर कर दीजिए। ओके और जो आपका जो काले लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है वो भी डाल मैं शेयर करके दिखा दूं क्या जस्ट हाँ दिखा काली दीजिए, केस है तो क्विकली थोड़ा क्विकली ठीक दिखा रहेगा। दीजिए, दैट वुड बी गुड। सर ओके वन सजेशन फॉर काली लिनक्स, क्योंकि जो लैपटॉप काफ़ी सारे होते हैं अभी प्रेजेंट में, विंडोज के साथ काली लिनक्स करेंगे तो कुछ लैपटॉप आजकल रैम क्रैश कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली देखा भी है, कुछ का रैम क्रैश भी हुए हैं। इसलिए पेन ड्राइव के थ्रू ही हाँ ओनली यूज हो तो वो बेटर होगा। हाँ इट डिपेंड्स, अगर आप पेन ड्राइव के थ्रू यूज़ करेंगे तो आपको बूट में चलाना है तो भी चलेगा उस पर। हाँ। बट मिनिमम अगर 8 GB रैम है आपके सिस्टम में और तो ये काली चलाने पे कोई दिक्कत नहीं होगा। 40 GB या 20 GB का हार्ड डिस्क एक लगाना है उसमें वर्चुअली, और अगर आपका मेन रैम है 8 GB का तो चल जाएगा। सर 16 GB रैम था, वो अभी एसर का एक लैपटॉप है उसमें भी क्रैश हुआ है, आसूस में उसमें भी रैम क्रैश हुआ है, क्योंकि वो लोग जो वारंटी में था तो वो लोग चेंज करके गए हैं, बट तो है कि भी बेसिकली लगातार क्रैश कर रहे वो हैं। वो मे बी रीजन होगा, कुछ और भी रिसोर्सेज यूज हो रहे होंगे, कुछ एप्लीकेशन यूज होगा, बट 16 GB पे तो अच्छा खासा चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारे कंपनी का हाँ, लैपटॉप भी 16 GB ही रहता है रैम। वो आपको हेल्प कर देंगे। आप पहले तो हम्म वन ऑफ ए केस होगा वो कि आपका क्रैश हो जा रहा है, बट इन हम्म जनरल हम लोग तो काम कर रहे हैं तो नहीं क्रैश हो रहा है। बट यू कैन डिस्कस विद बालाजी। लुक शेयर का एक बार मुझे परमिशन दीजिए ना। अच्छा, एक चीज और था कि मुझे नाम मैं भूल रहा हूँ। somebody was talking about or seeking some help on सिम टूल्स। तो वो उन्होंने ज्वाइन किया आज कॉल, मैं नाम भूल रहा हूँ, एंड आई फाउंड ए पर्सन हु कैन हेल्प। जैसे पिंक पैड, सेम्बल, ये सब पे कोई सीखना चाह रहा था। नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, आई हैव गिवन यू द शेयर राइट्स। ओके
Is i5 with 8 GB RAM is suitable for the Kali? चल जाए 8 GB is more than sufficient, not more an than issue. Okay. So this is the Kali, okay? This is Kali OS, and it is installed under VirtualBox. VirtualBox looks like this, Oracle का. मैं आपको इसका लिंक दूंगा और आपको कैसे इंस्टॉल करना बताऊंगा. आप उसी जगह फॉलो करके ये पहले इंस्टॉल करेंगे, नंबर 1. फिर नंबर 2, आप उसके बाद काली को इंस्टॉल करेंगे. इसके अंदर कैसे करना है उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट लिंक और यूट्यूब का वीडियो दूंगा, और ये आपको इसके अंदर इंस्टॉल करना है. देन ये ऐसा दिखेगा, ओके. उसके बाद जो हमारे जो इनिशियली क्लासेस होंगे इसी पे होगा. फिर बाद में जब हम एप्लीकेशन पे आएंगे तब मैं आपको बर्बशूट के बारे में बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है. तो इस पे मैं छोटा सा एग्जांपल एक बताता हूँ. जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एक अटैक बताता हूँ. जो सारे अटैक होंगे वो हमारे टेस्टिंग इन्वायरमेंट में होंगे, कोई लाइव वेबसाइट पे हम नहीं करेंगे क्योंकि लाइव वेबसाइट में करना रिस्क होता है, और इसी वजह से हमें टेस्टिंग इन्वायरमेंट में यूज़ करना है. मैं आपको 2-3 टेस्टिंग इन्वायरमेंट बताऊंगा, उसी पे प्रैक्टिकल करेंगे. तो जस्ट एग्जांपल के लिए देखिए, ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ. ये एक वेबसाइट है. फॉर एग्जांपल आप या तो कोई रेलवे स्टेशन में होंगे. आजकल रेलवे स्टेशन में भी वाईफाई फ्री में मिलता है, राइट? वैसे ही अगर एयरपोर्ट में ओपन वाईफाई है, आप उसमें कनेक्ट करते हैं. उसी समय अगर मान लीजिए अटैकर भी उसी वाईफाई पे है, ठीक है, तो क्या होता है उस समय, मान लीजिए ये वाला वेबसाइट आपका है जो आपके लैपटॉप में चल रहा है, और वही सेम नेटवर्क में जो वाईफाई में आप कनेक्टेड है एक अटैकर भी कनेक्टेड है. तो वो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, राइट? यूजर नेम डालें आप, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है. जो पासवर्ड है आपको पता है बट किसी और को पता नहीं है, बट अटैकर ने आपके कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया है और उसको आपकी पासवर्ड जानना है, तो वो कुछ टूल यूज़ करता है. जैसे मैंने काली में यूज़ किया, देखिए ये. तो इसको बोलते हैं वायर शार्क टूल. ये नेटवर्क कैप्चर करता है, पैकेट्स कैप्चर करता है, नेटवर्क पे कुछ भी एक्टिविटी होती है सेम नेटवर्क पे, तो ये कैप्चर कर सकता है. तो अभी देखिए मैं यहाँ पे अब फ़िलहाल के लिए इसमें सिक्योरिटी कम है, तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे हिट किया और यहाँ पे मैं एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे रहा हूँ कोई भी. जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, जब लॉगिन करते हैं तो वो क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट होता है. पोस्टिंग कर रहा है ना, पोस्ट कर रहा है. लॉगिन मतलब मैंने सबमिट किया तो पोस्ट हुआ. तो यहाँ पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट चेक करना है, ये रहा. जस्ट एग्जांपल के लिए समझिए. फिर इसको फॉलो किया मैंने, फिर यहाँ पे एचटीटी स्ट्रीम देखा मैंने. तो ये देखिए, अब हैकर को पता चल गया है कि आप इस पासवर्ड को यूज़ कर रहे हैं, India@2025. तो इसी को कहते हैं मैन इन मिडल अटैक. मतलब आपको पता नहीं, आप बैंक की यूज़र आईडी पासवर्ड दबा रहे हैं आपके नेट बैंकिंग की, बट वही नेटवर्क में अगर मान लीजिए कोई दूसरा भी बैठा है जो एक वल्नरेबल पर्सन है, एक अटैकर है, तो वो इस तरह से कैप्चर कर लेता है आपका पासवर्ड. इसलिए पब्लिक वाईफाई में हमेशा कनेक्ट करना और पर्सनल चीज़ें यूज़ करना इज़ अवॉइड करिएगा. तो इसी तरह से अटैक होता है. सो इसको आप मैन इन मिडल अटैक बोल सकते हैं. फिर वो जो आपने पूछा था ना, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस में डिफरेंस क्या है. अब ये वेबसाइट चल रहा है एचटीटीपी पे, इसी वजह से यहाँ पे आपका क्रेडेंशियल लीक हो रहा है, ठीक है. और अगर ये एचटीटीपीएस में चलता और इसकी कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड रहती, तो इसके ये क्रेडेंशियल लीक नहीं होते. इसी प्रकार से ये बहुत सारे अटैक हम इस काली के अंदर कर सकते हैं. काली बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है. तो हम आगे की क्लास में समझेंगे. जस्ट मैंने आपको बताया था कि इसका यूज़ किस तरह होता है, ठीक है. Nee, thank you, Balaji. So it looks very interesting, and you all will find several hundreds kind of attacks, and while learning the penetration testing ethical hacking course. ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल है. Thank you. Have a good day, guys. Bye bye. All right. Bye bye.